اور یہاں پر لکھے بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمول ہو، اور آپس میں مذاہب اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے آگے چل کے گاتے بجاتے رہا سو کلام میں حضرت پڑھا وہاں پر اور یہاں پر دونوں حالتوں میں وقت کو غنیمت جاننے کے لیے کہا گیا ہے، اور وجہ بیان کی گئی ہے کیونکہ دن اس وقت میں اور دن برے، حالات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں، یہ حالات اب درست ہونے کے لیے اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں دعا کروں گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دعا ضرور کریں، دعائیں زندگی بہت ضروری ہے، لیکن یہ حالات اب ٹھیک نہیں، اب یہ یسوع کے آنے پر ہی حالات آمین۔ لیکن جب تک یسوع نہیں آتا اس وقت تک لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں اور اس سبب سے ندان، دن برے ہیں پر اس سبب سے ندان نہ بنو۔ اس بات کو معمولی بات نہ سمجھو کہ یہ عام سی بات ہے، دن برے ہیں ہم جس طرح کی مرضی زندگی بسر کریں، دن برے ہیں اس بات کو کیا کرو جی سمجھو، وقت کو غنیمت جانو، دن برے ہیں اس سبب سے ندان نہ بنو۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ، وقت کو سمجھو، نادان نہ بنو، سمجھو، بلکہ کیا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اور اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ آگے کیا کہے خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، نادان نہ بنو، وقت برا ہے، نادان نہ بنو بلکہ اس کو سمجھو، خدا کی مرضی کو سمجھو، اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کا ویسے تو بہت کچھ اس کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے، اس پر میں نے پیغام دیا ہے، پھر دوبارہ کہنے والا ہوں بہت جلد، لیکن اگر میں اس کو چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں بیان کروں تو آسان اور کامل بات بھی ہوگی، اور بالکل ایک لفظ میں بیان کروں گا تو یہ زندگی خدا کی مرضی کو سمجھنے والی دعا کرنے کے بغیر جو کہے میری دعائیں زندگی میں نہ ہو اور میں خدا کی مرضی کو سمجھو، ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا کرنے والے لوگ دعائیں زندگی ہی خدا کی مرضی کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے، اس لیے اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو، یعنی اپنی زندگی کو دعائیں زندگی بنائے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعائیں زندگی بنائے رکھو گے، نہیں تو دعائیں زندگی کو بنایا جائے۔ اگر کہ شراب میں مت والے نہ بنو، یہاں پر یہ جو شراب لفظ ہے یونانی مطلب میں لفظ ہونے یا اونو، جس کا مطلب شراب نہیں بلکہ میں ہے، یہ لوگوں کا دادا راس وہ شراب نہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ شراب کر دیا گیا ہے، شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ شراب میں مت والے نہ بنو، اس سے مقبول ہونے کی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں روح سے معمول، اس کی جگہ پر دوسرا جو ہے ایمانداروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے تو پتہ نہیں کس طرح سے وہ معمول ہوتے ہیں، کن باتوں کو لیتے ہیں، لیکن مقصدوں کے لیے لکھا بلکہ روح سے کیا ہوتے جاؤ گے معمول ہوتے جاؤ، اور آپس میں پہلا لفظ کیا ہے مذہبی، پہلا لفظ بچوں دھیان سے بیٹھا ہے، پہلا لفظ کیا ہے پورے میرے ساتھ مذہبی، کیونکہ اپنے مذہبی میں بھی بجانا ہے، گانا بھی ہے، گاتے بھی ہو، آگے بھی گانے ہیں، اس لیے ذرا اس کے بارے میں سمجھ ہونا کہ مذہبی ہے کیا، آگے کیا لکھا کہ مذہبی اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ ہمیں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گیت کو غزل کہہ رہے ہوتے ہیں اور مذہبی کو گیت کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں کہ مذہبی کیا ہوتا ہے۔
रूहानी गजल क्या है, गीत क्या होता है, क्योंकि अब आपकी ये फील्ड बन गई है गाना बजाना। तो इसलिए सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा इल्म का होना भी जरूरी है, लेकिन बुनियादी चीजें जो बाइबल की हैं उनका तो होना अजहद जरूरी है। आप गाने वाले, आप बजाने वाले हैं, कोई बाइबल पढ़ के आपको पूछ लेता जी मज़ामीर किसे कहते हैं, तो फिर आपके पास जवाब ये होगा जी उस्ताद से पूछ के कर बताएं। वो पूछ लेता गीत क्या है, आपका फिर भी ये जवाब दुरुस्त है, चलो बता गई, तो दुरुस्त तरीका है कि मैं उस्ताद से पूछ के बताऊंगा, लेकिन मुनासिब जवाब देने के लिए आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या लिखा है मज़ामीर। मज़ामीर वो शेर हैं जिनमें नबूवत का अंसर पाया जाता है। जैसे दौर में बहुत से मज़ामीर लिखे गए, उनमें आप पढ़ के देखिए आपको नबूवत नजर आएगी। जिसमें नबूवत का अंसर पाया जाए उसको क्या बोलते हैं जी मज़ामीर। दूसरा लफ्ज़ क्या है जी गीत। गीत वो शेर हैं जो अपने महबूब के लिए गाए जाते हैं। हमारा महबूब कौन है? यीशु मसीह। जो आप यीशु के लिए गाते हैं ना, उस शेर को क्या बोलते हैं? गीत। और इसलिए लिखा है जिस गीत में तू ना हो तुम वो गाया ना करे, वो तो गीत है ही नहीं, वो गीत नहीं, क्योंकि गीत का मतलब लोगों को मालूम नहीं, इसलिए तरह तरह की सोचें गाते रहते हैं। गीत वो होता है जिसमें अपने महबूब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए, उसको क्या बोलते हैं जी गीत। आगे क्या है जी रूहानी गजलें। गजल क्या है? गजल वो शेर है जिसके हर शेर में एक मुकम्मल कहानी। मज़ामीर में ऐसा नहीं होता, गीत में ऐसा नहीं होता। गजल का ये फर्क है, हर शेर एक मुकम्मल कहानी होता है। उसके हर शेर पर आप गौर करके देखिए, एक मुकम्मल कहानी, आपको पूरी बात मिलेगी उसमें। जिस शेर में आपको हर बात मिले और पूरा वो जो लिखा गया है पेज, उस हर शेर में आपको क्या मिलेगी? एक पूरी कहानी मिले। उससे आंखें बंद करके कह देना गजल है, और अगर कोई तराज करे तो उससे पूछेगा गजल होती क्या है। इसके बारे में गायकी की दुनिया में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन बाइबल की दुनिया में जो कुछ मैंने आपको बताया वो है। गजल के बारे में दुनियावी लोग क्या तफसीर करते हैं? कहते हैं जब हिरन के बच्चे उससे छीन लिए जाते हैं, रात को अकेली जब होती है, अपने बच्चों की कमी महसूस करती है, और बच्चों की दर्द में जो उसके अंदर से भौंक निकलती है, आवाज निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? गजल। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो भी एक कहानी बयान करती है, मुकम्मल कहानी होती है। मतलब वो भी दुरुस्त है, गलत नहीं है, पर वो जिस्मानी मतलब है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ रूहानी मतलब। उसके अंदर से जो भूख निकलती है ना, आवाज, दर्द भरी आवाज निकलती है, बाकी वो भी एक कहानी होती है जो अपने बच्चों के लिए बोल रही है, पुकार रही है। लेकिन उसको क्योंकि हर बंदा नहीं समझता, ठीक है नहीं, इसलिए जो कुछ समझ में आ रहा है वो ये है कि जो शेर अपनी मुकम्मल कहानी बयान करे उसको क्या बोलते हैं? गजल। जिसमें अपने महबूब के लिए गाया जाए उसको क्या बोलते हैं? गीत। और जिसमें नबूवत का अंसर पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? मज़ामीर। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जब गाएं तो आपके गाने की वजह से लोगों की जिंदगी का तब्दीली करना चाहिए। आप जब गाएं तो अपने महबूब का जो आपके अंदर इश्क है, मोहब्बत है, वो दूसरों तक पहुंचे। जब आप गाएं तो एक मुकम्मल कहानी, खुदा की कहानी, खुशखबरी लोगों तक पहुंचे। आमीन। आप उसमें क्या किया करो जी, जब आप इकट्ठे होते हो आप उसमें क्या करना है? लिखा है मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। और आगे जो खास बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ ये है, और दिल से खुदा गाते जाते। दिल से गाना बजाना फर्क होता है, मजबूरी की बुनियाद पर गाना बजाना फर्क होता है, दुनिया के लिए गाना बजाना वो क्या जी फर्क होता है। दुनिया वाले भी बड़ा दिल से गाते भी जाते हैं, याद रखो बड़ी महफिल जम जाती है, दुनियावी लोग भी गाते हैं, लेकिन दुनियावी लोगों के गाने में और रूहानी लोगों के गाने में फर्क क्या होगा? महफिल तो वो भी जमा लेते दिल से खुदा मिलते गाते वो दिल से हैं, पर अगला लफ्ज उसमें ऐड नहीं है। जिस तरह बेशुमार लोग
खुश रहना सीखे हैं। मैंने बेशुमार लोगों को देखा वो खुश रहते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन पहला लफ्ज उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। पहला लफ्ज क्या है? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। वो खुश तो रहते हैं पर खुदावंद में नहीं। लेकिन पहली बात बुनियादी है, खुश रहो पर खुदावंद में। आमीन जी। खुदावंद में खुश रहना फर्क है और दुनिया के साथ खुश रहना फर्क है। दुनिया वालों के पास कोई अजर नहीं, लेकिन खुदावंद के पास देने के लिए अजर मौजूद है। इसलिए लिखा है दिल से आगे कर खुदावंद नहीं, खुदावंद दिल से खुदावंद के लिए, लोग दुनिया के लिए, कुत्तों के लिए, अपने खुदाओं के लिए जो उन्होंने आप खुद बनाए हैं, लकड़ी के, पत्थर के, सीमट के, पत्थर किस चीज के, उनके लिए लोग गाते हैं, अपनी देवियों को खुश करने के लिए गाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है आप उसमें मज़ामीर की तो रूहानी गजलें गाया करो और दिल से आगे तरफ खुदावंद के लिए खुदावंद के लिए। तो आप बच्चे हो भी, जैसे जैसे आप इस तालीम में बढ़ोगे, आप कदो कामत में भी बढ़ोगे। जिस दुनिया में आप रहते हो, ये दुनिया आपको तरह तरह की सोचें देगी। कौन को देख रहा है, आप बजाओ, ठीक है जी, लेकिन उनको बताओ हमारा फैसला है कि हम सिर्फ खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं, क्योंकि बाइबल ने हमें ये काम सोचा। आमीन जी। इसलिए बच्चों, आप सुबह के लिए नसीहत है, जब भी गाना है, जब भी बजाना है, तो सिर्फ खुदावंद। वजह क्या? क्यों खुदावंद के लिए गाना है, क्यों बजाना है, क्या वजह क्या है? मतलब क्यों पाबंद किया गया हमें? आवाज हमारी है, हम किसी के लिए भी गा सकते हैं। मना इसलिए किया गया है कि ये दी उसने किसी इंसान ने दी, किसी और ने दी, ये दुनिया में खुदावंद ने दी है, जिंदगी में खुदावंद ने दी है, ये गला, ये सांस हमें खुदावंद ने दी है। तो इसलिए लाजमी है जिसने ये दी है, ये उसी के लिए गाया। आमीन जी। किसी और के लिए हमें कोई हक नहीं, ना किसी और को ये हक है कि मेरे लिए गाओ। हमें इन सारी बातों की समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, और मैं बड़े ईमान के साथ कहता हूँ आप बहुत जल्द, बहुत ज्यादा खुदावंद में तरक्की करेंगे। आमीन आमीन आमीन। आज आपके लिए दुआ भी की जाएगी, ठीक है जी। सो यहाँ पर दोबारा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, समझूंगा बस और से देखो किस तरह चलते हैं। खुदावंद के लिए गाते बजाते हो, इंसानों के लिए गाते बजाते हो, ये याद रखना चाहिए। गाते बजाते हो तो कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, इंसानों से भी तारीफ नहीं चाहिए। याद रखो, बेटा जो मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। जिसकी आसमानी बाप सारी कायनात का मालिक इज्जत करता है, इंसान ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करनी चाहिए, लेकिन ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को याद रखना। बस गौर से देखो किस तरह चलती हो, नादानों की तरह रही, बल्कि दनाओं की। मानी चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। आपने गाना है, आपने बजाना है, लेकिन दोनों कामों को करने से पहले अपनी दुआया जिंदगी को भी आपने कायम रखना। याद रखो, ध्यान से दलील दुआया जिंदगी को कायम रखना बहुत जरूरी है। फिर आप खुदावंद के लिए, फिर आप दिल से। अगर दुआया जिंदगी कायम नहीं, याद रखें, मुझे नाम नहीं लूंगा जी, आप सारे जानते हैं। बहुत बड़े प्रस्ताव ने पूछा, पादी साहब आप मुझे बताएं कि मैं अच्छी प्रस्तुत जिस तरह की खुदा चाहता है कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा जी जो दिल में होता है वो जुबान पे आता है। मेरे नजदीक, बाइबल के नजदीक सबसे पहली बात इन प्रस्ताव में जो होनी चाहिए वो पकीज़ा होना चाहिए। जितनी उसकी सोचें पाक होंगी, उतना ही उसके गाने की स्वर से खुदा की जहां खुदा की हुजूरी होगी वहां मौजे होंगे, और जिंदगी तब्दील होना, सोचे तब्दील होना, राहें तब्दील होना शुरू हो जाती है उस ताकीद की किस्म से। 12 वर्ष से बीमार हो, तुम जब यीशु को छुआ तो यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली हुई है। ईमानदार जब गाता है, जब बजाता है तो कुव्वत निकलनी चाहिए। अगर उसके अंदर पाकीज़गी होगी, सोचों में पाकीज़गी होगी, उसके गाने बजाने से खुदा की। और आप समझते हैं कि जहां खुदा की हुजूरी होती है वहां फिर कोई दूसरी चीज
आपके गाने के शौक से कोई वाजी वाजी करे ना करे, खुदा की हुजूरी आमीन जी आप गाएं, खुदा की हुजूरी कायम रहे। और खुदा की हुजूरी के बारे में कैसे बनेगी? एक सोच अगर आपके अंदर चल जाए, अभी चल जाए, तो मैं समझता हूँ अभी अगर चल गई तो सारी जिंदगी कामयाब खत्म कर दोगे। और वो क्या चलेगी? वो मजबूत। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मजबूत है। उस्ताद जी मौजूद नहीं, वो मौजूद है। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, वो मौजूद है। खुदा की हुजूरी को कायम रखने का तरीका, बनाने का तरीका वो। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है। कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है जिसकी हुजूरी में मैं गा रहा हूँ। एलिया ने बड़े कमाल की बात कही, खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा, वो इस तरह खुदा को देख रहा है कि वो मेरे सामने खड़ा है। आमीन। वो हर जगह मौजूद है कि नहीं? बस जब आप प्रस्तुत करें, दुआ करके शुरू करें, इस सोच के साथ करें, वो मौजूद है। बाज़ अली सोचे भी बड़ी थी ना, भाई जी वो क्या है? बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत रूहानी परस्तार, जब उसका वक्त आया तो लोगों ने उसको बुलाया गया जिस टाइम का स्टेज पे जाके कहता बाजी लोग कौन क्या है? वो थे का आदमी बड़ा जबरदस्त बैठ जा और भी उठ गया। उन्हें क्या कि पता लग गया कि तुसी लोगों वास्ते का लोगों को आने दो, खुदा मौजूद है कि नहीं? यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? खुदा के लिए। लोगों की अपनी बातचीत के लिए पता ही नहीं कि हम आए किसके लिए यहाँ पर, हम गा किसके लिए रहे हैं, बजा किसके लिए रहे हैं। दुनिया हो ना हो, वो मौजूदगी को कभी जिंदगी से जलाली परस्ता। मैंने किसी अच्छे खादम को ये कभी कहते नहीं सुना कि लोग तो आ रहे हैं, नदान लोग ऐसी बातें करते हैं। असली तो क्या खुदावंद की क्या लफ्ज़ क्या है? जिनसे खुदावंद वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बरकत देने वाला वो है, अजर उसके पास है, आपको बढ़ाने वाला वो है, सरफराज करने वाला वो है। कोई इंसान ना तो सरफराज करता है, ना ही बरकत दे सकता है, ना ही उसके अंदर वो कुदरत मौजूद है जो वो आपकी जिंदगी में लाभ करना चाहता है। इसलिए मैंने कहा था इस बात पर मैं थोड़ा रुकूंगा और दिल से खुदावंद के कोई हो ना हो, खुदावंद है, वो मौजूद है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो मौजूद है। आमीन। तो जब वो मौजूद है तो बरकत आपकी ला सकती है। आमीन। मैंने अपना पैगाम मुकम्मल कर लिया और पैगाम के साथ एक और बात आपको बताऊं अपनी जिंदगी के बारे में। मेरे पास थोड़ी बरकत है या ज्यादा बरकत है, उसका जो मेन राज है वो ये है कि जमीन पर, आसमान पर तो मेरा आसमानी बाप है कन्फर्म। जमीन पर मैंने अपने उस्तादों की ताबेदारी की है और आज भी कर रहा हूँ, और बाप में चाह जब तक मेरी सांसें उस वक्त अपने उस्तादों की ताबेदारी करता रहूँ। मैं बता रहा हूँ तो आज तक मैं अपने उस्ताद के सामने बोला नहीं, जब मैंने माना दिल से वो मेरे उस्ताद बात नहीं, वो जो भी कह रहे हैं वो सख्ती कर रहे हैं, वो नरमी कह रहे हैं, मैं ओके। और मैं अक्सर उस्तादी शिगिर्दी के जब प्रोग्राम होते हैं, मैं इस वक्त मैं इबादत में गया हूँ, ऐसे कामों में गया हूँ, मान लोगों को एक ही दोस्ती है, उस्ताद थोड़ा सीखा या बहुत सीखा है, आप कामयाब हो जाओगे जब फरमा बरदारी उस्ताद के सीखे। उस्ताद की ताबेदारी बहुत बड़ा अमल है, लेकिन जब साज़ और आवाज मिल जाते हैं खुदा का तब लग जाता है। जब शुक्रगुजारी करने वाला और लेने वाला एक हो जाते हैं तो आसमान से जवाब आता है, और इस तरह जब सीखने वाला और सिखाने वाला एक दूसरे के वफादार हो जाते हैं तो जिंदगी का मुकाबला शुरू हो जाता है। आमीन। उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी पड़ेगी। आप छोटे हैं, बड़े भी होंगे, आप बड़े से बड़े भी हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है शिगिर्द उस्ताद से बड़ा। आप कद में बड़े हो जाएंगे, लंबे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस्ताद से बड़े नहीं। स्कूल में आपको टीचर पढ़ाते हैं, आपने मिडिल की, प्राइमरी जिस उस्ताद से की, उसके बाद दूसरे स्कूल में चले गए, फिर आप कॉलेज में चले गए, आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आप प्रोफेसर बन गए, वो प्राइमरी का टीचर है वो आपका उस्ताद, क्योंकि उससे सीखे ही आप यहाँ तक पहुंचे। ऐसे शिगिर्द कभी प्रोफेसर भी बन जाए, प्राइमरी का टीचर उसका उस्ताद, क्योंकि उसने सिखाया है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। ताबेदारी का जो है, फर्माबरदारी का जो है,
बहुत ही कामल अमल है। और मेरे यीशु ने भी उठा उठा के फरमाया बाप की मर्जी को पूरा किया। किसी जगह पर भी इसने ये नहीं कहा कि यहाँ मेरी मर्जी पूरी हो, साथ ही जुमला लास्ट मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। इसलिए इस बात जब माना है ना तो फिर इकराम करना पड़ा। लेकिन जब मुझे खुदा कलाम कर मेरी इज्जत कहाँ, मुझे ये बताओ है बाइबल का सवाल क्यों नहीं? खुदा तो कहते हो पर इज्जत किधर है? विश्वासी गिरद यीशु को छोड़ के चले गए। कब? जब यीशु ने कहा ये मेरा बदन तुम्हारे खाने के लिए। क्या वजह थी? तो वो सिर्फ इंसान ही समझे, ये भी हमारी तरह का इंसान है। और ये बात उसने कौन सी कर दिया मेरा बदन खाने को? मेरा ये नहीं समझे कि ये बात हमारी समझ से बाहर है। वो ये समझा कि नहीं इंसान होकर बड़ी बात कर रहा है, छोड़ के चले। और वो यीशु के साथ नहीं रहे, पर बाइबल में उनका नाम नहीं लगा। बाइबल में सुपुरुष गिरदों का नाम है यीशु के साथ। आमीन। इसलिए ताबेदारी का अमल बड़ा ही पावर का अमल। आमीन। बेटा इसको कभी आमीन। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, बाइबल की रोशनी में खुदा मुमकिन दिल से और खुदा इसको कभी सब